Hello friends, welcome back to our classes. Welcome to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Today we are going to discuss topmost MCQ for ZP pharmacist, AIMS pharmacist, CGHS pharmacist as well as all upcoming pharmacist examination. Those who are new to the channel, please like, share and subscribe the session, and those who are old, please like and share the session. Okay? So let's go. Our first question is which is not a type of, क्या पूछा है, which is not a type of drug distribution method, which is not a type of drug distribution method. The option are given here: drug basket method, just in time method, unit dose drug distribution method and floor stock method. Which one is not? So A, which one is correct? So ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्ट इन टाइम मेथड. कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी नहीं है, बाकी सारे हैं. ड्रग बास्केट मेथड भी है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी है, फ्लोर स्टॉक मेथड भी है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रग स्टोर? व्हाट इज ड्रग स्टोर? क्या होता है ड्रग स्टोर? So option are given here: a department of hospital which deal with the procurement, storage, compounding and dispensing of grocery item. Then next, a department of hospital which deal with the manufacturing, testing, packaging and distribution of food and food products. Third, a shop where the prescription drug over the counter medicine, medical device and cosmetic and toilet preparation are stored, sold and dispensed. And D में आता है A and B. So which one is correct? So option C is correct. A shop where the prescription drug, over the counter medicine, medical device and cosmetic and toilet preparation are stored, sold and dispensed. Got it? क्या होता है ड्रग स्टोर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a type of floor stock system? Which one is not a type of floor stock system? Charge floor stock system, uncharged floor stock system, access floor stock system, none of the above. Which one is correct? तो जो नहीं है वो पूछा है, तो कौन सा नहीं है? ये है एसेस फ्लो स्टॉक सिस्टम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बाकी सब है. चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्यूलेटरी पेशेंट्स आर. एम्ब्यूलेटरी पेशेंट आर क्या होता है? रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, required to go home after taking the treatment in OPD, then require emergency treatment or none of the above. Which one is correct? तो ये होता है required to go home after taking the treatment in OPD. Ambulatory patient are required to go home after taking the treatment in OPD. Option B is correct. Next question, in charge floor stock system is. इंचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज क्या होता है? इंचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, द फर्स्ट, नर्सिंग स्टाफ चार्ज फॉर द डोज एडमिनिस्ट्रेशन, द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन टू हिम, देयर शैल बी नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट अकाउंट, एंड थर्ड फोर्थ, डॉक्टर इज चार्ज फॉर मेडिकेशन. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर टू हिम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चार्ज फ्लोर मीन्स क्या होता है? द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर टू हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेट थ्रू अ स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड यूनिट डिस्पेंसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड unit dose dispensing. Option B is correct. Option B is correct. Next one, drug distribution system fall into the categories. Drug distribution system fall into categories: A, ward control system, B, pharmacy control impress based system,
फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यूज सिस्टम, ऑल ऑफ दी अबव. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है ऑल ऑफ दी अबव. क्या पूछा था? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल इनटू द कैटेगरीज, जिसमें आता है व्हाट? कंट्रोल सिस्टम, देन फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस्ड सिस्टम, देन फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट सिस्टम issue system. Got it? All of the above. Option D is correct. Next, nurse fill a requisition form for delivery of the drug at their floor. When there is an empty container, the nurse place it is in the basket, drug in basket. This method is known as. क्या बोलते हैं? When nurse fill a requisition form for the delivery of drug at their floor, when there is a empty container, the nurse place it in the drug basket. This method is known as. क्या बोलते हैं? यूनिट डोज सिस्टम, ड्रग बास्केट मेथड, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है ड्रग basket method, that is called drug basket method. Option B is correct. Next question. If a doctor cancel any dose, it is the duty of fill in the blanks to destroy a drug into the sink and record refuse by the patient. Which one is that? Doctor, pharmacist, nurse, ward staff. Which one is that? तो ये होती है nurse. If a doctor cancel any type of dose, it is the duty of nurse to destroy a drug into the sink and record refuse by the patient. Got it? Next question. The advantage of individual prescription order system is. The advantage of individual prescription order system is all medication orders are directly reviewed by pharmacist. एक second. All medication order are directly reviewed by the pharmacist. Next, it provides the interaction of pharmacist, doctor, nurse and the patient. It provides the clear inventory control and all of the above. Which one is correct? तो ये होता है option D is correct. All medication orders are directly reviewed by the pharmacist. It provides the interaction of pharmacist, doctor, nurse and their patient. Then it provides the clear inventory control. So option D is correct. Next question. Narcotic drug should be stored in. Must be kept in double lock cabinet or cupboard. Must be stored in freeze. Should be kept in front of shelf. All of the above. Which one is that? So narcotic drug should be stored in. ये होता है must be kept in double lock cabinet or the cupboard. Option A is correct. Next question. In the patient service division does following works. Provide medication for all in the patients of hospital on 24-hour per day basis. Inspection and control of drugs on the treatment areas. Cooperate with a medical drug research. All of the above. Which one is correct? तो ये होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्या क्या था इसमें? प्रोवाइड द मेडिकेशन फॉर ऑल इन वन पेशेंट्स ऑफ हॉस्पिटल ऑन 24-hour पर डे बेसिस. देन इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग ऑन द ट्रीटमेंट एरियाज. देन कोऑपरेट विद द मेडिकल ड्रग रिसर्च. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the unit dose system, CUDD stand for. In unit dose system, CUDD stand for. क्या होता है CUDD? तो ये होता है सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्या होता है? सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Centralized unit dose drug distribution system is known as CUDD. Next question. The main responsibility of pharmacy technician may include all the following except preparing medication order, conduction unit inspection, administering medication to the patient, monitoring patient drug therapy. Which one is correct? तो ये होता है ऑप्शन सी, एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन टू द पेशेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपीडी स्टैंड फॉर. क्या होता है ओपीडी? ओपीडी आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
आउट पेशेंट डेवलपमेंट सेक्शन, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है ओपीडी? ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। व्हाट इज आईपीडी? आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of quickly obtaining an out of the stock medication in an urgent situation is called. The process of quickly obtaining an out of stock medication in an urgent situation is called emergency drug procurement, bulk compounding, then code card, then final filter. Which one is that? तो यह होता है इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड क्या होता है इसमें? इमरजेंसी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट, रेफर पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड? तो इसमें सब आते हैं, इमरजेंसी भी आता है, रेफर्ड भी आता है और एम्बुलेटरी भी आता है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, automated drug dispense system is called unit based cabinet, automated dispensing device, automated distribution cabinet, all of the above. Which one is correct? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें सब आता है। विच वन? यूनिट बेस्ड कैबिनेट भी आता है, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइस भी आता है, देन ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट भी आता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug include under the control drug is opium derivative, barbiturate, amphetamine, all of the above. Which one is that? The drug include under the control drug. तो ये होता है all of the above. इसमें आता है opium derivative, barbiturate as well as amphetamine. Next question. कर दो और शेयर भी कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, डिसीज, डायग्नोसिस इज प्रिपेयर्ड, देन नेक्स्ट बी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट directly to the pharmacist which are when then enter in the patient profile card, third pharmacist check medication order, and fourth all of the above. Which one is correct? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, डिसीज एंड डायग्नोसिस, देन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट विच आर देन एंटर इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, and the third one pharmacist check the medication order. Next question, what percents of item in B category in the ABC analysis? 20%, 30%, 70%, 50%. Which one is correct? In the B category, किसमें पूछा है? B category, तो इसमें होता है टोटल 20%। तो ABC का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंप्लीट बताना है। ABC कैटेगरी में कितने आइटम, कितने परसेंटेज आइटम होते हैं वो आपको बताना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 drugs at the same time. How many? Minimum 4 to 10 drug at the same time on regular therapeutic basis is called. कितने? मिनिमम 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर इंटरवल। तो इसे क्या बोलते हैं हम? ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवरयूज। तो इसे बोलते हैं हम पॉलीफार्मेसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेशेंट सर्विस? इशू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में। सो विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पेशेंट सर्विस। तो ये होता है इशू सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेशेंट सर्विसेज, इम्पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज। ओके, सो ये सारे तो होते हैं। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी होता है, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम भी होता है, एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड भी होता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? 3, 4, 5, 2. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है 3। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? तो ये होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an important document
of the hospital containing a collective list drug information bulletin, hospital registered, hospital formulary and pharmacopoeia. Which one is that? तो ये होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमाशेक बैक्टीरिया इज कोकाई, बैसिली, विब्रियो, स्पायरोचिट्स. विच वन इज दैट? तो यह होता है विब्रियो. कॉमाशेप इज विब्रियो. बाकी आपको बताना है कोकाई, बैसिलाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंबाइन पील कंटेन, क्या कंटेन कराता है कंबाइन पील? इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ द अबव. तो कंबाइन पील कंटेन कराता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन इज कॉल्ड. तो क्या बोलते हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन? तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन इज कॉल्ड यूजॉल. इज कॉल्ड यूजॉल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलिजा टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग. किसके लिए होता है इलिजा टेस्ट? सो इलिजा टेस्ट होता है रैबिस के लिए. इलिजा टेस्ट इज फॉर रैबिस. टाइफाइड के लिए कौन सा होता है? पोलियो के लिए और एड्स के लिए. आप तीनों के लिए आपको बताना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइलेरियासिस इज कॉज बाय, किससे होता है फाइलेरियासिस? तो ये होता है उश्चेरिया ब्रोंकोफ्टी. ये होता है उश्चेरिया ब्रोंकोफ्टी. क्लोस्ट्रीडियम टिटानिक क्या कॉज कराता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज कराता है? देन ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या कॉज कराता है? तीनों भी आपके लिए होमवर्क है. ओके. आप तो वैसे भी कमेंट नहीं करते, फालतू के कमेंट तो बार बार करेंगे, पर जो आपको होमवर्क दिया है वो तो बिल्कुल नहीं करते. 2-4 लोग हैं जो कर लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर? तो कितना होता है टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड? 1 to 2 days, 3 to 5 days, 7 to 10 days, 10 to 15 days. हाउ मच डे? ये होता है 10 to 15 days. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, क्या डायग्नोस कराता है मॉन्टॉक्स टेस्ट? लेप्रोसी, डिप्थेरिया, टीबी, टाइफॉइड. विच वन इज करेक्ट? तो ये डिटेक्ट करता है, यूज टू डिटेक्ट टीबी. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mumps in children usually involves salivary gland, CNS, tonsil and throat, pancreas. तो mumps in children usually involves क्या होता है? ये होता है salivary gland. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो कल हो चुका है ना, सो आपके लिए फिर से होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन? कौन सा होता है वायरल इन्फेक्शन? पोलियो, टाइफाइड, प्लेग, नन ऑफ द अबव. विच वन इज? तो वायरल इन्फेक्शन में आता है, कौन सा आता है आपको बताना है. नेक्स्ट वन. मालायन कंटेन. मालायन कंटेन क्या कंटेन कराता है मालायन? तो मालायन कंटेन कराता है लियोनॉर्जेस्टेरॉल एंड इथिलीन इस्ट्राडोयल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. रॉड शेप बैक्टीरिया इज. रॉड शेप बैक्टीरिया आर कोकाई, बैसिलाई, विब्रियोस, स्पाइरिला. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है बैसिलाई. कौन होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज बैसिलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरियल डिसीज इज. तो कौन सा होता है बैक्टीरियल डिसीज? तो बैक्टीरियल डिसीज में आता है टाइफाइड फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स इज? सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, एमेंटिडिन, जुडोउडिन. विच वन इज? तो ये होता है जिडोउडिन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट. सिफिलिस इज कॉज बाय. तो किससे होता है सिफिलिस? बहुत बार देखा है हमने. तो स्ट्रिपिलिस इज कॉज बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज कॉज बाय राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेस, क्या कॉज कराता है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी? बेरीबेरी, पेलाग्रा, ग्लोसिटिस एंड स्कर्वी, क्या कॉज कराता है? तो एक कॉज कराता है ग्लोसिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, intrinsic factor is needed for the absorption of vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, vitamin D. Which one is correct? Intrinsic factor is needed for absorption is vitamin B12. कौन सा होता है? विटामिन B12. नेक्स्ट क्वेश्चन, लायू ओरल पोलियो वैक्सीन इज, लायू ओरल पोलियो वैक्सीन इज, तो ये होता है सैबिन्स वैक्सीन। लायू ओरल पोलियो वैक्सीन इज सैबिन्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय, किससे होता है? पेनिसिलिन से, इरिथ्रोमाइसिन से, टेट्रासाइक्लिन, कोट्रिमैक्सोल। विच वन इज करेक्ट? तो गोनोरिया कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय पेनिसिलिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गोनोरिया किससे होता है? कॉजेटिव एजेंट कौन है गोनोरिया का? आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली प्लानिंग इज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ब्रिंग अबाउट द वांटेड बर्थ, रेगुलर इंटरवल बिटवीन द टू बर्थ, ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट? सो फैमिली प्लानिंग इज टू ऑल ऑफ द अबव, अवॉइड unwanted pregnancy, bring about the wanted birth, regular interval between the two births. Okay, option D is correct. Next, अमीबियासिस इज क्या होता है अमीबियासिस? तो अमीबियासिस होता है पैरासाइटिक डिसीज, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, नन ऑफ द अबव। तो ये होता है पैरासाइटिक डिसीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in anaphylactic shock the drug of choice is isoprenalin, dopamine, coramine, adrenaline. Which one is correct? So in anaphylactic shock which one is drug of choice? तो यह होता है adrenaline, ये होता है adrenaline. So successfully we done all the questions. So I hope you like the session. If you like the session, please like, share and subscribe the session. So thank you for watching.